Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahujal Academy, and this is a demo lecture for the Limitation Act of 1963. ठीक? So, the Limitation Act is a very important act, although this is an underrated act, right? People do not give much importance to this legislation, but it is a very important one, right? So, what it basically does is it puts a limit upon the time when you can maintain an action in a court of law. It can be a suit, it can be an appeal, or it can be an application. ठीक है? So उसके लिए ये क्या करता है? एक time limit लगा देता है. That is why the name is Limitation Act. ठीक है? Now the first question is why do we even need a Limitation Act? हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? ठीक है? देखो, the basis of Limitation Act is threefold. ठीक है? The first is a maxim which is known as interest republicae ut sit finis litium, right? So the maxim says it is in the interest of the republic that there is an end to litigation. Interest republicae ut sit finis litium. ठीक है? So देखो, the maxim says that it is in the interest of the republic that there is an end to litigation. देखो, unending litigation में क्या होता है? People waste a lot of time and energy and resources in fighting the litigation. ठीक है? So that energy could be spent somewhere else. ठीक है? यहाँ पर देखो, अगर all of the citizens are involved in suing each other, that is not a healthy look for society. Society को हमेशा dispute को as soon as possible resolve करके और आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है? So वो हम लोग कैसे अचीव करते हैं? One of the ways of achieving limited litigation is by limiting the time period for filing the suit, appeal or applications. ठीक है? So the first is interest republicae ut sit finis litium. अगर देखो, if there is no limit, right, or A has a cause of action against B, याद रखना, A can theoretically have his cause of action with him till eternity. ठीक है? But on the other side, we have to see the situation from the point of view of B, the opposite party. The opposite party must not be left at apprehension. ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे लगा कि पता नहीं कब मेरे पर सूट फाइल हो जाए. That should not be there. ठीक है? So that is why how do you ensure it? By having a time limit set upon the cause of action. ठीक है? और इसके क्या होता है? It brings a stability और certainty in legal relationships. अगर एक टाइम के बाद आपने सूट फाइल नहीं किया, that means आप वहाँ पर सूट फाइल नहीं होगा. इससे क्या होगा? There will be a stability or certainty in the legal relationship between A and B. ठीक है? First. Second maxim is vigilantibus dormantibus jura subvenient. Right? Now, this maxim says that the law is going to assist only those persons who are vigilant about their rights and not to those who sleep over it. Okay? So, what the law expects from you is that if you have a reason to file a suit or an appeal or an application, you must do it as soon as possible. Okay? अगर किसी का right violate हुआ है, so expectation क्या होगी? That person will maintain an action in a court of law as soon as possible. If that person does not maintain an action, वहाँ पर लॉ प्रिज्यूम करता है कि उसका उस राइट वायलेशन का उस पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. ठीक है? सो अगर इफेक्ट पड़ा होता तो ही मस्ट हैव कम टू द कोर्ट. अगर नहीं पड़ा है, दैट इज व्हाई ही इज नॉट कमिंग टू द कोर्ट. ठीक है? सो लॉ डज नॉट हेल्प अ पर्सन हु स्लीप्स ओवर हिज राइट्स. द लॉ इज गोइंग टू असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स. ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी हैव द रूल ऑफ विजिलेंटिबस डोरमेंटिबस जुरा सबवेनिएंट. एंड द थर्ड वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस. The doctrine of laches or the doctrine of delay. Okay? If there is an unexplained delay, ठीक है? अगर बहुत बड़ा डिले हो जाता है, तो what is the effect of such delay? The first effect is that evidences may be lost. ठीक है? अगर बहुत बड़ा डिले होता है, मान लो कि 20 साल पहले, 25 साल पहले या 30 साल पहले अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उसके एविडेंसेस फ्रेश कब होते हैं? जब वो इंसिडेंट हुआ है. आफ्टर 30 years, मे बी द डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट. ठीक है? और अगर कोई विटनेस था, द विटनेस, उसकी मेमोरी फेड हो सकती है. ठीक है? पीपल मे नॉट रिमेंबर कि 30 साल पहले क्या हुआ था. सो एविडेंसेस मे बी लॉस्ट. बट एक बात और याद रखना कि इफ देयर इज अ डिले, एविडेंसेस मे बी लॉस्ट, बट दैट डज नॉट मीन द पार्टी इज गोइंग टू रेस्ट. नहीं, द पार्टी इज देन गोइंग टू फैब्रिकेट द एविडेंसेस. वहां पर अगर कोई विटनेस ये कहता है कि मुझे याद नहीं कि 20 साल पहले क्या हुआ था, वहां पर पार्टी उससे कहती है ठीक है, अगर आपको नहीं याद है आप ये बोल देना, ये बोल देना, ये बोल देना. ठीक है? दैट इज फैब्रिकेटिंग एविडेंसेस. एंड दैट इज व्हाई
द डॉक्ट्रिन ऑफ डिले सेज दैट द एविडेंसेस में बी लॉस्ट और दे में इवन बी फैब्रिकेटेड, ठीक है. सो दैट इज वाई हम लोग कहते हैं देयर मस्ट बी अ टाइम लिमिट पुट. देखो अगर इस पे हम लोग कहते हैं कि प्रिजर्विंग वेरी ओल्ड रिकॉर्ड्स इज इटसेल्फ आवर नाइटमेयर, ठीक है. अगर 100 साल पहले के रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना पड़ा तो वो वहां पर जो लॉजिस्टिकल जो प्रॉब्लम होगी वो तो अलग ही है, ठीक है. सो याद रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिले सेज कि अगर ज्यादा डिले हो रहा है तो एविडेंसेस में बी लॉस्ट एंड दैट इज व्हाई इट पुट्स अ टाइम लिमिट कि आपको इतने टाइम के अंदर ही सूट फाइल कर देना है, ठीक है. देखो सो लिमिटेशन एक्ट के कितने बेसिस है? देयर आर 3. There the first one, interest republicae archer finis litium. Then there is the second one, which is vigilantibus germentibus jura non subvenient, and then there is the third one, which is the doctrine of laches or the doctrine of delay. Okay, that is the basis of Limitation Act. Now, देखो, the Limitation Act is not a very big legislation. Okay, it is divided into two parts. The first part is the sections, and the other part is the articles. ठीक है. अब देखो देर आर सेक्शंस जो है इसमें सेक्शंस 1 to 32 है, ठीक है. और आर्टिकल्स जो है ये हमारे 1 to 137 है, ठीक है. नाउ सेक्शंस जो है दीज आर द मेन वंस और ये है वो जो सब्सटैंटिव पार्ट है. आर्टिकल्स आर द प्रोसीजरल पार्ट. बट याद रखना ओवरऑल हम लोग ये भी कहते हैं कि लिमिटेशन इज अ प्रोसीजरल लॉ, ठीक है. नाउ अब ये जो सेक्शंस हैं 32 सेक्शंस, इनको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है. जस्ट सी द ओवरऑल स्कीम ऑफ द एक्ट लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है. नाउ सेक्शन 1 and 2 दीज आर द प्रिलिमिनरी वंस. सेक्शन 1 इज द प्रिलिमिनरी एक्सटेंट ऑब्जेक्ट सारा वो सब कुछ नेम एक्सटेंट एंड ऑब्जेक्ट. सेक्शन 2 इज द डेफिनेशंस, ठीक है. अब सो पहला है हमारा फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन 1 and 2. दीज आर द एक्सटेंट प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, ठीक है. और इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 3, ठीक है. नाउ सेक्शन 3 इज द बार ऑफ लिमिटेशन, ठीक है. बार ऑफ लिमिटेशन बोलता है कि इफ द प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर फाइलिंग द सूट अपील और एप्लीकेशन इज ओवर देन इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू डिसमिस द सूट अपील और एप्लीकेशन इवन दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, ठीक है. अब देखो इसके बाद आता है हमारा सेक्शंस 4 to 11, ठीक है. दीज आर द एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस. एंड देन वी हैव सेक्शंस 12 to 24. These are the exemptions. And then finally we have sections 25, 26 and 27 to 25 to 27. These are the provision for prescriptions, ठीक है. prescriptions क्या होती है. And then there are 28, 29, 30, 31, 32. These are the residuary ones. So यहाँ पर हमारे residuary बन जाते हैं, हमारे बच जाते हैं residuary ones. These are sections 28 to 32. Although इसमें कई सारे repealed भी है हमारे, ठीक है. Just to give you an overall scheme of the act कि हमारा क्या होता है. और देखो यहाँ पर याद रखना कि कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर हम लोगों को इससे पहले कि हम लोग एक्ट पढ़े हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है. द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज, देखो प्रिंसिपल्स में हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट प्रिंसिपल इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई, ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई. सो द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई इट मींस लॉ ऑफ द फोरम. लेक्स फोराई का मतलब क्या होता है? लेक्स फोराई का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम, ठीक है. यहां पर फोरम का हम लोग क्या मीनिंग समझेंगे? फोरम इज द कोर्ट. सो लॉ ऑफ द कोर्ट, लेक्स फोराई का मतलब हुआ लॉ ऑफ द कोर्ट. याद रखना कि लिमिटेशन एक्ट इज लॉ ऑफ द कोर्ट, ठीक है. बट इसका मतलब क्या हुआ? अगर इफ वी से दैट लिमिटेशन एक्ट इज द लॉ ऑफ द कोर्ट, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दैट? What we really mean is that limitation act is binding on the court. Is binding on the court. ठीक है. अब इसको भी हम लोगों को फर्दर बाइफरकेट करना पड़ेगा कि लिमिटेशन एक्ट इज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट का मतलब. देखो एज अ जनरल रूल it is expected from the party to raise the bar of limitation or raise the defense of limitation, ठीक है. But what if the party does not raise the bar of limitation? That does not mean the court gets a power or court gets a jurisdiction to conduct the hearing, right? अगर पार्टी ने रेज नहीं किया तो
कोर्ट सुओ मोटो रेज कर देगी बार ऑफ लिमिटेशन, ठीक है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई. याद रखना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अप्लाई द लॉ ऑफ लिमिटेशन. लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करना कोर्ट की ड्यूटी है, ठीक है. इवन दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेटअप एज अ डिफेंस, ठीक है. और याद रखना कि प्लेंटिफ जो है या जो एप्लीकेंट है या जो एप्लेंट है वो अपने सूट अपील एप्लीकेशन को फाइल करके खुद ही नहीं बोले कि मेरा सूट बार्ड है या मेरी अपील बार्ड है या मेरा एप्लीकेशन बार्ड है. नहीं, इट इज द ऑपोजिट पार्टी हु रेजेस द बार. अगर ऑपोजिट पार्टी ने बार रेज नहीं किया तो भी कोर्ट की ड्यूटी है कि वो अभी भी बार ऑफ लिमिटेशन को रेज करेगी ही करेगी, ठीक है. दैट इज व्हाट यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है. सेकेंड, अब देखो क्वेश्चन ये होता है कि कैन अ पार्टी वेव हिज राइट ऑफ लिमिटेशन. क्या एक पार्टी अपने राइट ऑफ लिमिटेशन को वेव कर सकती है? And the answer is no. The party cannot waive his right of limitation. Even if the party wants to, याद रखना, it is still the doctrine of lex forae. कोर्ट तो अभी भी अप्लाई करेगी ही करेगी. ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है टू अप्लाई द लॉ ऑफ लिमिटेशन. सो अ पार्टी कैनॉट वेव हिज राइट ऑफ लिमिटेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कैन बोथ पार्टीज बाय ए म्यूचुअल अग्रीमेंट कैन दे एक्सटेंड और रिड्यूस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. थर्ड इज कैन द पार्टीज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट extend or reduce the period of limitation, right? Now the answer to this question is no. The parties cannot extend or reduce the period of limitation, and the reason is, देखो, reason is कि ये agreement it has to be in conformity with the Contract Act, ठीक है? अग्रीमेंट हैज टू बी अ लॉफुल अग्रीमेंट, और उसके लिए हम लोगों को सेक्शन 23 एंड 28 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है. अगर पार्टीज को अलाउ कर देंगे हम लोग कि पार्टीज कैन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट एक्सटेंड द लिमिटेशन पीरियड, ठीक है, अगर वो एक्सटेंड अलाउड है, दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज पार्टीज कैन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, ठीक है. तो वहां पर वो लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम पीरियड सेट है उसको वो डिफीट कर सकती हैं, ठीक है, बाय एन अग्रीमेंट है. दैट इज व्हाई द अग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो एक्सटेंड तो नहीं कर सकती है, ठीक है, बिकॉज एक्सटेंशन वुड डिफीट द पर्पस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. बट कैन द रिड्यूस इट, ठीक है. देखो, लिमिटेशन सेट्स द अपर लिमिट, ठीक है, कि इसके बाद आप नहीं कर सकते हो. डज इट से कि आप कम भी नहीं कर सकते हो? ऐसा लिमिटेशन एक्ट नहीं कहता, ठीक है. बट सेक्शन 28 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज गोइंग टू बी वॉइड, ठीक है. सो यहां पर दिस इज द सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेज दैट एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड. ठीक है. सो द क्वेश्चन वाज कैन द पार्टीज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट एक्सटेंड और रिड्यूस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन? नो. व्हाई? एक्सटेंड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एक्सटेंशन अलाउड होगा तो सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज कि सच अग्रीमेंट इज वॉइड. रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सेक्शन 28 ऑफ द सेम एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज गोइंग टू बी वॉइड, ठीक है. चलो, नंबर 4, ये तो नंबर 3 था. नंबर 4, अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC, ठीक है, कैन द कोर्ट इन इट्स इनहेरेंट पावर्स, ये क्या होता है सेक्शन 151 ऑफ CPC? दीज आर द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. क्या कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करके पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड या रिड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है. सो क्वेश्चन इज कैन द कोर्ट अंडर इट्स इनहेरेंट पावर्स extend or reduce the period of limitation? ठीक है. इसका भी आंसर क्या है? The answer is no. Inherent powers जो सेक्शन 151 ऑफ CPC में है
वहां पर भी कोर्ट जो है उसे एक्सटेंड या रिड्यूस नहीं कर सकती। एंड द रीजन इज कि ये जो पावर्स होते हैं, इनहेरेंट पावर्स, सेक्शन 151 जो है दैट स्टार्ट्स विद नथिंग इन दिस कोड, राइट। तो वो इनहेरेंट पावर्स किस कॉन्टेक्स्ट में है? सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में है। दे आर नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इनहेरेंट पावर्स आर inherent but they are limited to the provisions of CPC. They do not extend to the limitation act. That is why यहां पर देखो, लेकिन एक बार ये भी याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कोर्ट जो है वो एग्जेम्पशंस एक्सेप्शंस नहीं दे सकती। दे सकती है बट ओनली अंडर द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है कोर्ट को डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 5 वगैरह में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट नॉट अंडर द इनहेरेंट पावर्स। वो पावर्स स्पेसिफिकली कोर्ट को सेक्शन 5 में दी गई हैं, ठीक है, ऑफ लिमिटेशन एक्ट, नॉट अंडर सीपीसी। सो 151 ऑफ सीपीसी में यहां पर द कोर्ट कैन नॉट एक्सटेंड। हाँ, अगर लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट में देयर आर प्रोविजंस व्हिच गिव यू एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशंस। यहां पर हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 4 to 11 में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, या फिर सेक्शन 12 to 24 में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। यहीं पर हमारा सेक्शन 5 है व्हिच इज condonation of delay. So the court, if sufficient cause is given, in case of any appeal or other application, court वहां पर आपका जो condonation of delay है उसको ऑर्डर दे सकती है, but that is under the limitation act, not under CPC, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। Now the other thing is, ये तो था हमारा नंबर 4। नंबर 5, there is a principle, और इसको ध्यान से सुनना because this is an often repeated question. The principle says limitation bars the remedy but not the right. Limitation bars the remedy but not the right, ठीक है। Now यहां पर जो रेमेडी की बात हम लोग कर रहे हैं, the remedy is maintaining an action in court of law. It can be a suit, appeal or application. Maintaining an action in a court, ठीक है। So limitation bars you from maintaining an action in the court, ठीक है। बट जो राइट आपका वायलेट हुआ है और द राइट टू फाइल अ सूट है वो थियोरेटिकली आपके पास अभी भी रहता है, ठीक है। सो लिमिटेशन सिर्फ आपको कहता है कि यू कैन नॉट मेंटेन एन एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बट द राइट इज स्टिल विथ यू। थियोरेटिकली द राइट इज स्टिल विथ यू, ऑल्दो अ राइट व्हिच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इज अ पर्पसलेस राइट, राइट। उस राइट का कोई मतलब नहीं हुआ, बट यस थियोरेटिकली वो राइट आपके पास अभी भी है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स है उस राइट को इन्फोर्स कराने का विच शुड नॉट बी लीगल, तो आप वो करा सकते हो। इवन अगर आपने और 20 रूल 19 सब रूल 3 ऑफ सीपीसी पढ़ा है, वहां पर जहां पर इक्विटेबल सेट ऑफ होता है, ठीक है, इक्विटेबल सेट ऑफ में भी याद रखना कि वहां पर यू डोंट नीड कि वो लिमिटेशन पीरियड में भी हो, अगर लिमिटेशन पीरियड के बाहर भी हो तो भी इक्विटेबल सेट ऑफ हो सकता है। याद रखना वो इक्विटेबल सेट ऑफ है, ठीक है, इसीलिए अगर वो लिमिटेशन पीरियड के बाहर भी हो तो भी कोर्ट अलाउ कर सकती है, ठीक है। तो वो राइट जो है जनरली आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, इन सम कॉन्टेक्स्ट इन्फोर्सेबल हो जाता है। लेकिन ये प्रिंसिपल दिस इज ट्रू फॉर सेक्शंस 4 to 24, राइट। इस प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस कहां पर है? सेक्शंस 25, 26 एंड 27, जहां पर कि not only the remedy is lost but the right is also extinguished, ठीक है। so section 27 की अगर marginal heading पढ़ोगे which is much more clear, section 27 बोलेगा extinguishment of the right to property, ठीक है। तो वहां पर मान लो कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाउस है, और किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, ठीक है, एडवर्स पोजीशन है उसका। जिस दिन से पोजीशन एडवर्स हुआ है वहां से 12 ईयर्स के अंदर, अंडर आर्टिकल 65 यू गेट 12 ईयर्स ऑफ टाइम कि आप सूट फाइल कर सकते हो। अगर 12 ईयर्स के अंदर, 12 साल के अंदर अगर आपने सूट फाइल नहीं किया, सो आफ्टर 12 ईयर्स जिसके भी पोजीशन में था दैट पर्सन बिकम्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहां पर आपका जो रेमेडी है, जब सूट है वो तो नहीं फाइल कर सकते, जो आपका राइट भी था उस प्रॉपर्टी में वो भी एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो 25, 26 एंड 27 ये कहते हैं नॉट ओनली द रेमेडी इज लॉस्ट, the remedy is lost but the right is also extinguished, ठीक है, ये याद रखना। तो याद रखना these are all the principles which govern the limitation act, ठीक है। so number 1 is the doctrine of lex fori, it is a duty of the court to apply the limitation act, ठीक है, even if the parties do not do so।
ये चीज अगर देखना है, सेक्शन 3 का जो सबसेक्शन 1 है, ठीक है, उसकी लास्ट लाइन बोलती है even though limitation has not been set up as a defense, so the court has to dismiss the appeal application or the suit even though limitation has not been set up as a defense, and the reason is doctrine of lex fori. ठीक है. सेकंड, हम लोगों ने देखा यहां पर कि पार्टी कैन नॉट वेव हिज राइट ऑफ लिमिटेशन. अब पार्टी वहां पर क्यों? रीजन इज इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फॉर, पार्टी के लिए नहीं है ये, ठीक है, ये है कोर्ट के लिए. लिमिटेशन इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द पार्टीज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट एक्सटेंड और रिड्यूस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर एक्सटेंड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, इसलिए वो अग्रीमेंट वॉइड है. और अगर रिड्यूस करेंगे then that is a violation of section 28 of the contract act which says any agreement in restraint of legal proceedings is going to be void. ठीक है. then we have the inherent powers. क्या inherent powers में कोर्ट अपनी जो सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में है, क्या उसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड या रिड्यूस कर सकती है? नहीं कर सकती. व्हाई? बिकॉज इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी स्टार्ट्स विद द वर्ड नथिंग इन दिस कोड. तो दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीसी एंड नॉट ऑफ लिमिटेशन. कोर्ट के पास पावर है एग्जेम्प्ट करने का, बट दैट इज अंडर द लिमिटेशन एक्ट. ठीक है, वो सीपीसी में नहीं फॉलो करता. एंड लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट. आपका राइट जो है थियोरेटिकली आपके पास रहता है. ऑल द लिमिटेशन एक्ट डज इज बार यू फ्रॉम अप्रोचिंग द कोर्ट. ठीक है, बट the right is a purposeless right because the right which cannot be enforced is a purposeless right. But there are also exceptions to this rule जहां पर कि ना ही आपकी रेमेडी नहीं लॉस होती, आपका राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज सेक्शन 25, 26 एंड 27. 27 की जो मार्जिनल हेडिंग है दैट मेक्स इट एम्पली क्लियर कि द राइट इज ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड. ठीक है, सो जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, द बेसिस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963. थैंक यू एवरीवन.